Hello everyone, welcome to the selection classes. So this is the part 3 of the series जिसमें हम लोग बात करने वाले हैं टॉप मोस्ट 100 जो क्वेश्चंस हैं Z 2025 एग्जाम्स के लिए एंड आई ट्राई टू upload the questions as soon as possible and I have already uploaded 2 videos. You can go through the videos and now this is the third video in the series. So we have the first question of the day that Praful went to market and bought apples, banana and oranges, right? So Praful is a person, he bought apple, banana and oranges. He purchased at least 25 variety, that is 25 fruits of each variety, and if the cost of the each orange was 1 more. Now it is saying if the cost of the each orange was 1 more and the cost of each bananas was 4 more, then his total expenditure on the fruits would have gone by rupees 136 and he had bought total of 80 fruits. So we have to find the bananas purchased, right? तो यहाँ पे अगर हम क्वांटिटी की बात करते हैं, एटलीस्ट उसने जो बात करी है दैट इज एप्पल, बनाना एंड उसके बाद ऑरेंजेस, तीनों कम से कम उसने 25 तो खरीदे ही खरीदे हैं, राइट? एंड इन तीनों को मिला के 80 उसने बाई करे हैं. दिस इज द टोटल इट इज गिवन, राइट? टोटल. नाउ इट इज सेइंग if the cost price, whatever be the cost price of the orange, it is increased by 1 more, right? Means that if the cost price of the one orange is increased by 1, so I can take O is the quantity and 1 is the price, and similarly 4 rupees for banana, means B is the quantity and 4 is the number of rupees. So the total goes up by 136. So he has to spend 136 rupees. Hopefully it is clear. Now this is the amount, right? This is the amount. Now it is saying total, it is given that we have to find the number of bananas, right? Okay. So we have O, we have 4B and I can do, this is equation second, this is equation 1. So I'll be subtracting first from the second. So इसमें से इसको माइनस करेंगे, so there is no use of O, so I'll be having that is 3B minus A and that is coming out to be 56. Hopefully it is clear. Now B is the quantity, A is the quantity of the apple and the banana purchase. So from here I can say 3B equals to 56 plus A. So from here B should be equals to 56 plus A upon 3. Right, now it is very clear that banana, apple and oranges should be positive integer, they cannot be in the fraction. So if I took the minimum value of apple, that is A equals to 25, so will it satisfying the condition? So 56 plus 25 upon 3 and that is 81 upon 3, 27. So 27 would be the banana, 25 would be the apple, and if I talk about the oranges, the oranges should be, if I go about from this, O should be equals to 136 minus 4 times of B. So 136 minus 4 times of B, that is 136 minus 108, so 28. So 28 the quantity of the oranges, 27 banana and apple are 25. So we need to check क्या ये तीनों मिलके आपको 80 fruits दे रहे हैं? Yes. So I can say apple 25 खरीदे and banana 27 and oranges 28. So answer of this question would be, that is आंसर मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, उसने पूछा बनाना, that is 27. ठीक है, थोड़ा सा अलजेब्रा था बट इजी था. अगर आपके दिमाग में क्लिक करना चाहिए था कि ये जो रुपीज़ से रखे 1 रुपये बढ़ने से और 4 रुपये बढ़ने से बनाना के पर बनाना या पर ऑरेंज बढ़ने से क्या इम्पैक्ट आएगा. Now we have the second question that Ravi has taken a loan. Ravi has taken a loan for a certain amount at the simple interest 4% per month. हाँ, 4% पर मंथ की बात करता है. राहुल took a loan for the same amount at a simple interest 12% per annum. ठीक है, तो ये रवि ने लोन लिया है और राहुल ने जो लोन लिया है वो 12% पर एनम के हिसाब से लिया है. तो सिंपल इंटरेस्ट के अंदर एक खास बात होती है कि एवरी टाइम द इंटरेस्ट रिमेन एज इट इज,
मीन्स पर मंथ ये 4% है तो 48% हो जाएगा ये पर एनम फॉर द ईयर, एंड दिस इज 12% per annum. They have taken the same amount. If the difference in the interest they paid in 1 year is 1,80,000, so interest paid by Ravi and interest paid by Rahul, so who will be paying the more interest? Of course Ravi, because उसने monthly 4% लिया है, तो इनका जो difference है, हाँ, that is difference. So इसका 48% और इसका 12%, तो ये आ जाएगा 36% किसका? ऑफ द प्रिंसिपल अमाउंट, बिकॉज दे हैव टेकन द सेम प्रिंसिपल एज अ लोन. सो 36% ऑफ द प्रिंसिपल इट इज गिवन टू अस 1,18,000. हाँ, 1,18,000. सो फ्रॉम हेयर आई कैन से 1% का वैल्यू हो जाएगा 5,000. सो वी हैव टू फाइंड द अमाउंट ऑफ द लोन. सो 100% का वैल्यू हो जाएगा दैट इज 5,000 इंटू 100. So this is 5 lakh. So 5 lakh is the right answer. Option number D you can match. Hopefully समझ में आया होगा. बहुत इजी था, ये मुश्किल नहीं था क्वेश्चन. समटाइम ऐसे क्वेश्चन भी एग्जाम में आते हैं, बट यहाँ पे भी बच्चा गलती कर देता है. ये एक अच्छा सवाल है. Now it is saying if there are 5 more men in the workforce, they will take 16 days less to complete a job. So if you know that work जो होता है वो number of person that we have suppose m person and they are taking t days to complete a work, and I have taken m is the quantity along with the efficiency. हाँ, तो m यहाँ पे that is quantity और efficiency का प्रोडक्ट मैंने डिसाइड कर दिया, दोनों का सेम मान लिया, राइट, क्वांटिटी, राइट. और आई कैन से एफिशिएंसी सबका 1 मान लो 100%, और कैन टेक एफिशिएंसी ऑफ ईच पर्सन इज 100%, और आई कैन से 1, उसमें कोई रोल है नहीं, ठीक है, तो हमने 1 मान लिया, तो अभी क्वांटिटी इसकी m आ जाएगी. नाउ इट इज सेइंग इफ दे आर टेकिंग, वी हैव द 5 मोर मैन, तो दे विल बी टेकिंग 16 days लेस, एंड इंस्टेड इफ देयर आर 12 मोर मैन, अगर आदमी 12 और ज़्यादा हो जाए, दे विल बी टेकिंग 30 days लेस, t minus 30. एंड वी हैव टू फाइंड द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ मैन एंड द टाइम टेकन, राइट. तो ये वर्क है, ये भी वर्क है और ये भी वर्क है, सब तो इक्वल है बिकॉज सेम अमाउंट ऑफ वर्क हैज़ बीन डन. सो आई कैन क्रॉस मल्टीप्लाई, आई कैन मल्टीप्लाई देम. mt minus 16m plus 5t minus 80 should be equals to mt minus 30m plus 12t minus 360. So there is no use of mt. एंड इफ़ आई टेक m टू द सेम साइड, और आई कैन से 360 को इधर ले आते हैं तो ये 280 हो जाएगा, एंड सबको इधर ले के आते हैं तो ये हो जाएगा 70, एंड ये हो जाएगा -30 प्लस का 16 माइनस का 14m. सो t minus 2m की वैल्यू आ जाएगी दैट इज़ 40. सो एक इक्वेशन आ गई, बट अभी भी 2 वेरिएबल हैं, एंड आई हैव टू हंट फॉर अनदर इक्वेशन सो दैट आई कैन सॉल्व m एंड t और इनका रेशियो, राइट. चलिए, नाउ इट इज़ ऑल्सो गिवन कि अगर हम पहले इक्वेशन को उठा लेते हैं m+5 इंटू t minus 16, दैट शुड ऑल्सो बी इक्वल्स टू mt बिकॉज इट इज़ द वर्क ऑल्सो, इट शुड बी द वर्क ऑल्सो. सो फ्रॉम हेयर आई कैन गेट mt minus 16m plus 5t minus 80, again it should be equals to mt, so there is no use of mt. So I can say 5t minus 16m should be equals to 8080. Now 40 equals to t minus 2m, तो यहाँ से अगर मैं इसको 80 कर देता हूँ that would be 2t minus 4m. तो this is also 80, this is also 80, I can make them equal so that I can find the ratio, that would be 2t minus 4m, right. So taking similar terms to the same side, I will be having 3t and that would be equals to 12m. So m और t का जो रेशियो आएगा that would be 1:4, right, m and t 1:4, और आई कैन से 3/12 और 1:4. सो ये इसका आंसर है. इट इज़ सेइंग द नंबर ऑफ मैन एंड द टाइम टेकन. सो आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन वुड बी 1:4. होपफुली यू अंडरस्टूड. थोड़ा सा आई कैन से कैलकुलेटिव था, बट ईजी क्वेश्चन था, अप्रोचेबल था और डूएबल था. So we have the next question. If x and y are the positive integer less than 8, right? तो x and y की जो वैल्यू है, it is saying positive integer less than x, less than 8, and
कम से कम 1 तो हुई होगा, पॉजिटिव इंटीजर है, 1 तो कम से कम होगा। तो हाउ मेनी डिस्टिंक्ट वैल्यूज कैन द एक्सप्रेशन 3x प्लस 7y, ये कितनी वैल्यूज ले सकता है। ठीक है, अब यहाँ पे x और y की वैल्यूज़ को अगर मैं देखता हूँ तो इफ़ आई टेक द वैल्यूज ऑफ x एंड y, आई हैव टू चेक कि x की वैल्यू 1 रखने पर क्या आएगा, फिर ये 2 रखने पर ना भाई, x की वैल्यू 1 रख सकते हैं, 2 रख सकते हैं, 3 रख सकते हैं, 4 रख सकते हैं, आई कैन टेक 5, 6 और 7, राइट। सिमिलरली आप y की वैल्यू रखेंगे 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7। ठीक है, तो एक तो ये तरीका है कि आप इसको चेक करते रहिए बैठ के। तो यहाँ पे 7/7 का ग्रिड बन रहा है, 7 इधर 7 इधर, तो यहाँ पे 49 वैल्यूज़ हैं। तो यहाँ पे मैक्स टू मैक्स 49 डिफरेंट कॉम्बिनेशन पॉसिबल है। हाँ, एक बात को सोच के देखते हैं, या फिर कॉम्बिनेशन, मैक्सिमम कॉम्बिनेशन जो है वो 49 पॉसिबल है। ठीक है, ये तो समझ में आता है 49 भाई, एक यहाँ पे आएगा कुछ वैल्यू, कुछ यहाँ पे, बट क्या उनमें कुछ ऐसा वैल्यू है जो ये कॉमन हो जाए, सो दैट नंबर ऑफ मैक्सिमम कॉम्बिनेशन डिफरेंट हो जाए, बिकॉज उसने वर्ड यूज़ किया डिस्टिंक्ट वैल्यूज़। तो डिस्टिंक्ट तभी होगा जब हमको इस बात की गारंटी हो कि कोई भी किसी भी पेयर को रखने पर कोई भी वैल्यू रिपीट नहीं होगी। तो यहाँ पे अगर मैं इस बात को सोच पाता हूँ, आप यदि समझ पाते हैं, ठीक है, देखो मैं थोड़ा सा यहाँ पे इसको हटा के, हम यहाँ इसको हटा के डिफरेंट करते हैं, क्योंकि मैक्सिमम 49 कॉम्बिनेशन है, बट ये वैल्यू कितनी हो सकती है, मैक्स टू मैक्स और मिन टू मिन। तो अगर मैं मिनिमम की बात करता हूँ, हाँ मिनिमम भाई 3x प्लस 7y, ये मिनिमम कितना हो सकता है। तो ये मिनिमम तब होगा जब x और y आप मिला के 1 रखोगे, सो दैट विल गिव मी 10। और मैक्सिमम कितना हो सकता है, ये जब x की वैल्यू 7 और y की वैल्यू भी 7, सो दैट कैन गिव मी दैट इज़ 3 × 7 प्लस 7 × 7, 49 प्लस 1 70 जा सकता है। सो 49 प्लस 21 70। तो क्या 10 से लेके 70 तक, मतलब ये वाली वैल्यू आपके पास 10 आएगी और यहाँ पे जो वैल्यू आएगी लास्ट में 70 आएगी। बट क्या इस बात की कोई गारंटी है कि जब ये 70 तक वेरी कर रहा है तो कोई वैल्यूज़ रिपीट होंगी या नहीं रिपीट होंगी। ठीक है, तो आपको एक चीज़ पता होना चाहिए कि जब आप नंबर ऑफ़ इंटीजर सॉल्यूशंस निकालना चाहते हैं, इंटीजर सॉल्यूशन जब आप निकालते हैं इसके, तो पहली जो वैल्यू है और जो दूसरी वैल्यू है वो एक दूसरे के क्या चलती हैं भाई, x इंक्रीज होता है एज अ कॉफिशिएंट ऑफ y, या फिर डिक्रीज होता है एज अ कॉफिशिएंट ऑफ y एंड वाइस वर्सा। ठीक है, तो यहाँ पे अगर मैं इस बात को सोच पाता हूँ, मैं मान लो 3x प्लस y जो है वो 10 दे रखा है एंड पहला सॉल्यूशन आपके पास आ गया, तो अगर मैं इस बात को देख पाता हूँ कि यहाँ पे लाइक फॉर एग्जांपल सारी की सारी वैल्यू सेटिस्फाई कर रहा है, x की वैल्यू मैंने 1 ले ली और y की वैल्यू 7 ले लिया, या फिर x 7 हो सकता है और y जो है वो 1 हो सकता है, एक ये डिफरेंट केस है। तो यहाँ पे अगर पहली वैल्यू x की 1 है तो ये वाली वैल्यू जनरली डिक्रीज़ करती है क्योंकि ये छोटी वैल्यू है, और ये वाली वैल्यू क्या करती है, इंक्रीज़ करेगी, एंड इस वाले केस में ये डिक्रीज़ करेगी क्योंकि आपको इंटीजर सॉल्यूशंस की बात करनी है, और ये वाली वैल्यू यहाँ से इंक्रीज़ करेगी। ठीक है, ये वाली वैल्यू इंक्रीज़ करेगी, एंड आई कैन सी कि यहाँ पे 3 और 7 और 10 में कुछ भी कॉमन नहीं है, कुछ भी कॉमन भी नहीं है। तो आप इस बात को यहाँ से जब आप बना लेंगे इस प्रोग्रेस को, या फिर आप इस बात को यहाँ से समझ जाएंगे कि यहाँ पे ऐसी कुछ भी वैल्यूज यूनिक मतलब जो है वो रिपीट वाले चांसेस ही नहीं है, क्योंकि यहाँ पे 3 और 7 जो है हर बार आपको एक नया इंटीजर प्रोवाइड करेंगे। तो यहाँ पे जो मैक्सिमम जो पॉसिबल वैल्यूज़ हैं वो 7 × 7 49 के हिसाब से ये आंसर आ जाएगा। आप इसको चाहें तो वेरीफाई करके देख लेना। लाइक अगर आप x की वैल्यू 1 रखेंगे, ये 2 रखेंगे, तो 3x प्लस कितना है 7y, x की वैल्यू 1 रखेंगे 3 और ये रखेंगे 14 प्लस 3 17 हो जाएगा भाई, 7 2 14, और अगर मैं 3 रखूँगा तो फिर कितना बढ़ेगा, देखो भाई 3 × 1 प्लस 7 × 3, तो ये हो जाएगा 22 और 3 25, 7 21 और 3 24, सॉरी 24 बढ़ जाएगा ये, ठीक है 24 बढ़ जाएगा, फिर ये 28 आएगा, सॉरी 7 का डिफरेंस है, फिर ये 31 आएगा, फिर ये 38 आएगा, फिर ये 45 आएगा, और फिर ये 52 आएगा। अगर मैं यहाँ से चलता हूँ, आप यहाँ से चल के देखना, x की वैल्यू 1
सॉरी y की वैल्यू 1, x को बढ़ाते हैं तो ये 6 हो जाएगा और 7 13, तो ये 3 3 के डिफरेंस पे चलेगा, 16 19 22 25 और 3 28, ठीक है। तो 7 3 या 21, तो ये कुछ इस तरह से चलेगा और यहाँ पे कुछ भी वैल्यू रिपीट नहीं होंगी। तो यहाँ पे कंक्लूजन ये निकल के आएगा कि यहाँ पे 49 वैल्यूज डिफरेंट पॉसिबल कॉम्बिनेशन के साथ पॉसिबल है। आप इस ग्रिड को भर लेना, यू कैन नॉट फाइंड एनी वैल्यू जो कि रिपीट हो रही है। अब यहाँ से देखोगे ना तो भाई 13 16 सॉरी भाई ये 2 2 के मतलब 7 7 के डिफरेंस पे आएगा, ये 20 आ जाएगा, 27 34 41 48 55, तो ये सब चलेगा 52 55 58 61 64 67 70, तो यू कैन नॉट फाइंड एनीथिंग जो कि वैल्यू रिपीट होगी, ठीक है। तो 49 इसका राइट आंसर था। नाउ एट ए पर्टिकुलर इंस्टेंट द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ ए बर्ड एज ऑब्जर्व फ्रॉम ए पॉइंट पी 200 मीटर अबव ए लेक, ठीक है। तो एक लेक है आपके पास और यहाँ पे 200 मीटर ऊपर हम लोग कोई भी एक पर्सन खड़ा है 200 मीटर की ऊंचाई पे, ठीक है, और यहाँ पे एक बर्ड है, ठीक है। तो एंगल ऑफ एलिवेशन यहाँ से 60 डिग्री दे रखा है ये बर्ड का, ठीक है। एट द सेम इंस्टेंट द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द बर्ड रिफ्लेक्शन इन द लेक। अब ये जो बर्ड का जो डिफ्लेक्शन है भाई आप सोच के देखो, अगर मैं इसकी बात करता हूँ ये भी 200 तो कम से कम होगा और इसको मैं h मान लेता हूँ, तो ये जो रिफ्लेक्शन है ये 200 प्लस h के हिसाब से जाएगा और ये जो एंगल है डिप्रेशन का एज ऑब्जर्व फ्रॉम द सेम पॉइंट इज फाउंड टू बी 60 डिग्री। अच्छा ऊपर वाला 30 है, नॉट 60, इट इज 30, इट इज लाइक दिस वे। तो ये 30 है और ये 60 है, राइट। और ये जो नंबर है ये कुछ भी है, इसको a मान लेते हैं। एंड फाइंड द हाइट एट विच द बर्ड इज फ्लाइंग अबव द लेक, ठीक है। तो आपको h प्लस 200 की वैल्यू निकालनी है, हाइट एंड डिस्टेंस का क्वेश्चन है, ठीक है। अगर आपको ट्रिग्नोमेट्री के बारे में थोड़ी सी जानकारी है ट्राइंगल्स के बारे में, तो अगर ये 30 है तो ये 60 होगा, ये 90 है तो ये k√3 और 2 होता है, 30 के सामने k बनता है, ठीक है, और 60 के सामने k√3 बनता है। तो अगर ये h है तो इसको h√3 होना पड़ेगा, बिल्कुल सही बात है। और ये 60 ये 90 तो ये 30 होना पड़ेगा। तो अगर 30 के सामने h√3 है तो 60 के सामने कितना होगा भाई h√3 इंटू √3। होपफुली ये बात आपको समझ में आई होगी। इसका मतलब यहाँ पे वैल्यू 3h आएगी एंड 3h की वैल्यू क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 200 प्लस h के बराबर है, तो 2h की वैल्यू कितनी हो जाएगी 200, तो h की वैल्यू 100 आ जाएगी। सॉरी ये 200, अच्छा ये 200 प्लस h प्लस 200, ठीक है, यहाँ पे कुछ प्लस 200 और आएगा यहाँ पे। तो यहाँ पे 2h की वैल्यू 400 के बराबर है, तो h की वैल्यू 200 है। बस ये क्वेश्चन ख़त्म हो गया। आपसे बोलता है इस लेक से ऊपर इस बर्ड की हाइट कितनी है, तो आपको h प्लस 200 की वैल्यू निकालनी है। h इज़ ऑलरेडी 200, सो 200 प्लस 200 400। तो ये क्वेश्चन इजी था, बट तभी इजी था जब आपको ये रेशो वाली प्रॉपर्टी ट्राइंगल की पता होती। एल्स माइट बी पॉसिबल कि आपका आंसर गलत हो सकता था या फिर टाइम कंज्यूमिंग था बेसिकली, बट ये तरीका आपको आना चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। डीसी में अगर मैं 45 एंगल को कंसिडर करता हूँ बोथ साइड, सो दिस इज ए, दिस इज ए, सो ये हाइपोटेन्यूज a√2 होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन है राइट एंगल ट्राइंगल में 30 60 90 या फिर 45 का। वी हैव द नेक्स्ट क्वेश्चन। ये भी काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है एंड मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स शायद से इसमें फंस सकते हैं यदि उन्होंने पहली बार इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। अ थिन कॉपर वायर इज बाउंड यूनिफॉर्मली स्पाइरली इन अ सिंगल लेयर फ्रॉम द बॉटम टू द टॉप अराउंड ए सिलेंड्रिकल आयरन रॉड, ठीक है। तो एक सिलेंड्रिकल आयरन रॉड है दिस वे, ठीक है, दिस वे। द सर्कमफेरेंस ऑफ द आयरन रॉड इज 2 सेंटीमीटर, ठीक है। तो यहाँ से जो इसकी 2πr की वैल्यू है दिस इज गिवन टू अस 2 सेंटीमीटर, तो यहाँ से πr की वैल्यू आ जाएगी 1 सेंटीमीटर, ठीक है, कोई बात नहीं। एंड इट हाइट से 56, ये हाइट आपके पास 56 है सेंटीमीटर। इफ द नंबर ऑफ टर्न्स इन द स्पाइरली बाउंड कॉपर इज एक्जैक्टली 45, मतलब यहाँ पे 45 नंबर ऑफ टर्न्स बने हैं, नंबर ऑफ टर्न्स जो बने हैं वो 45 बने हैं, ठीक है। एंड व्हाट इज द लेंथ ऑफ द कॉपर वायर यूज्ड, तो कितना कॉपर वायर यूज हुआ है, ठीक है। चलिए
तो अगर मैं इस सिलेंडर को ओपन करता हूँ, अगर आप इस सिलेंडर को ओपन कर पाते हैं तो ये जो सिलेंडर है बेसिकली एक रेक्टेंगल बनता है। तो रेक्टेंगल का मतलब है ये जो वैल्यू है ये 2πr के बराबर है, ये जो वैल्यू है ये 2πr होती है, ठीक है। ये जो वैल्यू है ये सर्कमफेरेंस की 2πr होती है एंड दैट विल बिकम द आई कैन से ब्रेथ मान लो, या इसको ब्रेथ मान लो, इसको लेंथ मान लो, एक ही बात है रेक्टेंगल में। तो ये तो वैल्यू आपको 2 दे रखी है, ये तो वैल्यू 2 दे रखी है, राइट। अच्छा, एक चीज़ और नोटिस करनी है यहाँ पे कि टोटल आपके पास 56 सेंटीमीटर है हाइट, और यहाँ पे आपने 45 नंबर ऑफ टर्न्स बनाए हैं, मतलब जो टर्न बनेंगे कुछ इस तरह से बनेंगे, और ये 45 टर्न बनाए हैं, 45। सो ये जो टर्न होंगे ये इक्वी डिस्टेंट होंगे, हाँ ये जो टर्न होंगे ये इक्वी डिस्टेंट होंगे। इसका मतलब क्या है कि अगर मैं इस सिलेंडर को देखता हूँ, इस सिलेंडर पे जो पहला टर्न आएगा ओपन करने के बाद वो कितनी हाइट पे आएगा। जब आपने इस सिलेंडर को ओपन किया तो ये तो ये इसका बेस बन गया या लेंथ बन गई, तो इसकी ब्रेथ के हिसाब से इक्वी डिस्टेंट है। तो पहली जो टर्न आएगी वो 56/45 के हिसाब से आएगी, क्योंकि टोटल 45 टर्न है, 56 सेंटीमीटर। तो पहली जो टर्न या इक्वी डिस्टेंट वाली जो आएगी 56 को 45 से डिवाइड करेंगे, तो ये जो है ये लेंथ ऑफ 1 टर्न आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से अगर मैं लेंथ ऑफ 1 टर्न निकाल पाता हूँ तो पाइथागोरस थ्योरम लग सकती है। 56 और 45 में कुछ भी कॉमन नहीं है, तो लेंथ ऑफ 1 टर्न निकालने के लिए स्क्वायर रूट ऑफ 2 का स्क्वायर प्लस 56 और 45 का स्क्वायर, ये बहुत गंदा सा बन सकता है, ठीक है, देखते हैं। तो दिस इज 4 प्लस 56 इंटू 56, तो 6 6 जा 36, 6 5 जा 30, 60, 63, 5 5 जा 25, 3 1 36, और ये हो जाएगा 2025। इसका स्क्वायर रूट अब 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे 2025 को इंटू 4 तो 100, 8100। सो दिस इज 8100 प्लस 3136 अपॉन 2025, और इसका स्क्वायर रूट करेंगे तो ये हो जाएगा दैट इज 11236 डिवाइडेड बाई 2025। तो आई नीड टू चेक क्या ये किसी का स्क्वायर बन रहा है। ऊपर नीचे तो 45 का स्क्वायर बनना मैंडेटरी है भाई, ये नीचे 45, क्या ये 11236 क्या ये किसी का स्क्वायर फॉर्म कर रहा है। 11236 11,000, हाँ 35 का स्क्वायर कितना होगा, 4 12 2 11,000, तो मतलब ज़्यादा है ये। 106 का स्क्वायर कितना होगा, तो 6 6 जा 36, 60 दूनी 120 और 123, 100 112, हाँ बन गया। तो ये 106 का स्क्वायर फॉर्म हो जाएगा, यू कैन चेक, ठीक है। क्योंकि 10,000 से भाई 10,000 तो 100 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 1036, सॉरी 106, ठीक है। तो ये एक टर्न जो आई है उसकी लेंथ आ गई है कितनी आपके पास, ठीक है, ये जो आ गई है 106/45। सो टोटल कितना हो जाएगा भाई। टोटल लेंथ निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, जो भी एक लेंथ की जो एक टर्न की लेंथ है 106/45, उसमें 45 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो अल्टीमेटली 106 सेंटीमीटर का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। तो प्लीज़ आप इसको दोबारा से देखना, बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है कि जब आप वाउंडिंग करते हैं सिलेंडर के ऊपर रस्सी बांधते हैं, ठीक है, तो ये जो जब सिलेंडर को ओपन करना होता है तो हमेशा आपको यहाँ पे पहली जो टर्न है उसकी लेंथ निकालनी है, उसके बाद नंबर ऑफ टर्न से मल्टीप्लाई कर देना, बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है ये। And again we have a interesting question and I request you must try this question. I'll tell you the easiest way to solve this question, else आप इसको try करना। तो find the number of ways in which one can wear 3 distinct rings on the 5 finger, ठीक है। तो आपके पास 5 fingers हैं and इसको 3 rings हैं जो कि distinct है, ठीक है, जो कि distinct है। तो कितने तरीके से इसको पहना जा सकता है, गिवन दैट वन इज अलाउड टू वियर मोर देन, ठीक है, आप एक उंगली में कितनी भी रिंग पहन सकते हैं, ठीक है। अभी फिलहाल के लिए काम करते हैं, आपके पास 5 फिंगर है, F1 F2 F3 F4 और F5, ठीक है। और ये जो 3 रिंग्स हैं, ये जो 3 रिंग्स हैं अभी फिलहाल के लिए इसको अज्यूम आइडेंटिकल,
ठीक है, ऐसा मान के चलो कि 3 अंगूठियां हैं वो आइडेंटिकल है और 5 उंगलियों में पहनना है। तो ये वही क्वेश्चन हो गया कि जब आप 3 आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट को 5 नॉन आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट या डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट में डिस्ट्रीब्यूट करना चाहते हैं, तो नंबर ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन कितने पॉसिबल है? तो नंबर ऑफ द जो डिस्ट्रीब्यूशन पॉसिबल है वो बाय द फॉर्मूला 3 + 5 - 1 C 5 - 1, तो 8 - 1 C 4 और 7 C 4, और ये 7 C 3 के भी इक्वल होगा, 7 × 6 × 5 एंड 3 × 2 × 1, तो ये 35 वेज है यहाँ पे। तो होपफुली ये बात आपको समझ में आई होगी। इसका मतलब 35 वेज से आप इन उंगलियों को में अंगूठियों को पहन सकते हो, 3 अंगूठी, जो कि कंडीशन अप्लाइड है कि ये आइडेंटिकल है। बट यहाँ पे क्वेश्चन ये भी है कि रिंग्स आइडेंटिकल नहीं है। मतलब एक ग्रीन कलर की मान लेते हैं भाई, एक ये उंगली है, इसमें एक ग्रीन कलर की और रेड कलर की, ब्लू कलर की रिंग आपने पहन ली, तो उनको कितने तरीके से आप अरेंज भी कर सकते हैं। 3 डिफरेंट ऑब्जेक्ट कैन बी अरेंज्ड इन 3 फैक्टोरियल वेज। सो नंबर ऑफ अरेंजमेंट जो रिंग्स के हो सकते हैं वो 3 फैक्टोरियल हो सकता है। तो 3 × 2 × 1 दैट इज 6 वेज। भाई 6 तरीके से आप उसको अरेंज भी कर सकते हैं। ग्रीन नीचे आ सकता है, रेड फिर ऊपर आ सकता है, या फिर वाइस वर्सा, बहुत सारे तरीके हैं। सो टोटल वेज कितने हो जाएंगे, यही क्वेश्चन था। आप इससे आसान इसको नहीं कर सकते, सोचने का तरीका ही सब कुछ था इस क्वेश्चन में। सो 210 वेज आर द आंसर ऑफ द क्वेश्चन। वेरी ब्यूटीफुल क्वेश्चन। तो हमने बस ये अज्यूम कर लिया इनिशियली कि रिंग्स जो है वो आइडेंटिकल थी। उसके बाद हमने डिस्ट्रीब्यूशन निकाल लिए, और ये डिस्ट्रीब्यूशन में वो भी चीज़ें इंक्लूडेड है कि आप किसी को 0 भी दे सकते हैं। एंड ये बट ऑब्वियस है कि 3 उंगलियां हैं, 3 रिंग हैं, 5 उंगलियां हैं, तो किसी न किसी को 0 लाना मैंडेटरी है। ये बहुत प्यारा क्वेश्चन है एंड वन ऑफ द ब्यूटीफुल क्वेश्चन आई कैन से। आप इसको ट्राई करिए कि इट इज सेइंग देयर इज अ सर्कल एंड इट इज सेइंग 18136 मीटर इसका लेंथ ऑफ ट्रैक है, एंड देयर आर 2 मोटरसाइकिल स्टार्ट साइमल्टेनियसली फ्रॉम ए पॉइंट ओ इन द अपोजिट डायरेक्शन। ठीक है, ये अपोजिट चल रहे हैं। नाउ एवरी टाइम दे मीट, जब भी वो मीटिंग करेंगे तो ए इंक्रीज करता अपनी स्पीड को b से एंड 1 से +1 से, एंड b डिक्रीज करता है स्पीड को -1 से, 1 से डिक्रीज करेगा। तो a की स्पीड a +1 हो जाएगी, b की स्पीड b -1 हो जाएगी, बिकॉज इनिशियल स्पीड तो नहीं पता है। एंड दे स्टॉप व्हेन b's स्पीड गोज बिलो 2, तो b की स्पीड यदि 2 से नीचे चली गई तो रुक जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। नाउ इट इज़ गिवन इफ दे मीट फॉर द 10th टाइम एट, तो मीटिंग 10th मीटिंग का टाइम दे रखा आपको 3:36 PM पे, और उसके बाद 31st मीटिंग का टाइम दे रखा है 5 बजे, तो आपको मीटिंग टाइम निकालना है 23rd का। ये बड़ा प्यारा क्वेश्चन है एंड आप इसको ट्राई करिए एंड सोचिए क्या सोच पाएंगे। ठीक है, होपफुली आपने ट्राई किया होगा। देखो मान लेते हैं ये यहाँ पे मिले पहली बार फॉर एग्जांपल। ठीक है, नाउ इनकी रिलेटिव स्पीड a है, ये b है, तो इनकी जो रिलेटिव स्पीड है वो a + b है, बिकॉज दे आर इन द अपोजिट डायरेक्शन। मिलने के बाद a इज गोइंग दिस वे फॉर एग्जांपल एंड b इज गोइंग दिस वे। अभी इसकी स्पीड a की तो हो जाएगी a +1 और b की कितनी हो जाएगी b -1। तो अभी इनकी रिलेटिव स्पीड कितनी होगी? जब आप इस रिलेटिव स्पीड को सॉल्व करेंगे, नाउ रिलेटिव स्पीड व्हेन दे आर इन अपोजिट डायरेक्शन तो ऐड होती है। तो आई कैन कंक्लूड कि उनकी स्पीड, आप एक की स्पीड उतना बढ़ रही है जितना दूसरे की डाउन हो रही है, तो उनकी जो रिलेटिव स्पीड है हमेशा कांस्टेंट ही रहेगी, मींस इट इज़ नॉट गोइंग टू बी चेंज्ड। और अगर स्पीड चेंज नहीं हो रही है तो जो मीटिंग फ्रीक्वेंसी है वो कांस्टेंट रहेगी। वेरी इंपॉर्टेंट, राइट? सो रिलेटिव स्पीड यहाँ पे कांस्टेंट है। इफ इट इज कांस्टेंट सो आई कैन से कि जो टाइम इंटरवल फॉर ईच मीटिंग ये कांस्टेंट रहेगा और वो सेम रहेगा। दैट इज द की पॉइंट यहाँ पे। बस कुछ नहीं करना। तो यहाँ से यहाँ तक कितनी मीटिंग हुई? 10 से लेके 31 तक 21 मीटिंग हुई है, और 21 मीटिंग के लिए कितना समय लगा है, हाँ दैट इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। सो आई कैन से 336 to 5 कितना हो गया? 84 मिनट लगे हैं। तो एक मीटिंग करने में कितना समय लगेगा? 4 मिनट लगेंगे। बिल्कुल सही बात है, मतलब हर मीटिंग 4 मिनट के बाद हो रही है। दैट इज़ इम्पॉर्टेंट। नाउ आपको 23rd मीटिंग निकालनी है, तो m
10 से M23, भाई आप M10 से M23 तो कितनी मीटिंग करने हैं, 13 मीटिंग और करने हैं, और हर मीटिंग के लिए 4 मिनट लग रहे हैं, तो 52 मिनट आपको और चाहिए एडिशनली। तो 52 मिनट कहाँ से, 3:36 से, तो 3:36 से आप 52 और जोड़ लीजिए। अगर 60 मिनट होते तो 4:36 हो जाते, 8 माइनस कर दिए, 4:28 इसका राइट आंसर है। वेरी ब्यूटीफुल क्वेश्चन, आप इसको फिर से सोचिए और समझिए, और ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर है। सो होपफुली यू अंडरस्टूड कि मैंने आपको क्या बताया। ठीक है, एक और क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ये भी अच्छा क्वेश्चन है प्रॉफिट लॉस का। अ मैन चीट्स वाइल बाइंग एज वेल एज सेलिंग। वाइल बाइंग ही टेक 10% मोर देन व्हाट ही पेज फॉर। ठीक है, चीटिंग कर रहा है बाई और सेल पे। ठीक है, बाई और सेल दोनों पे चीटिंग कर रहा है। तो बाई पे क्वांटिटी मोर और मनी लेस, ऐसा होता है, ध्यान रखना है। और सेल करने पे क्वांटिटी लेस सेल करता है और मनी जो है वो ज़्यादा ले लेगा ये। ठीक है, तो यहाँ पे क्वांटिटी पे चीटिंग कर रहा है, खरीदते समय ज़्यादा लेगा क्वांटिटी। तो यहाँ पे जो क्वांटिटी है वो 10% मोर ले रहा है, मतलब 1/10। तो उसको लेना था 10, है ना भाई, लेना था 10 और 11 लेगा। तो लेना था 10 बट ये 11 इसमें लेगा, तो उसको फ़ायदा तो तभी होगा जब वो ज़्यादा क्वांटिटी बाय करेगा। एंड वाइल सेलिंग ही कीज 20% लेस, यहाँ पे 20% लेस है, तो 1/5। तो देना था 5 लेकिन देगा 4। ठीक है, मैं जो तरीका बता देता हूँ प्रॉफिट एंड लॉस में, ओवरऑल इफेक्ट के बारे में बात करते हैं। दैट इज़ प्रॉफिट इफेक्ट इनटू डिस्काउंट इफेक्ट इनटू चीटिंग इफेक्ट। तो इफेक्ट का मतलब क्या होता है, बस आपको एक बात ध्यान रखनी है। इफेक्ट का मतलब मेरी जो नज़रों में होता है आउटपुट अपॉन इनपुट। आपको क्या मिला और आपने क्या लगाया, हाँ, आपने क्या लगाया है और आपको रिटर्न में क्या मिला है। एंड इज फाइंड इज प्रॉफिट परसेंट इफ ही सेल्स 9.09 बिलो। ठीक है, तो उसने बोला है कि 9.09 पे वो कम पे बेच रहा है। 9.09 का मतलब हो गया 1/11, तो यहाँ पे वो लॉस खा रहा है एक तरह से। ठीक है, बस कुछ नहीं करना, अब आपको आंसर निकाल देना। ठीक है, देखो बहुत प्यारा सोल्यूशन है। तो यहाँ पे प्रॉफिट इफेक्ट की बात नहीं हो रही है या लॉस इफेक्ट की बात हो रही है। प्रॉफिट की जगह आप लॉस भी लगा सकते हैं, सॉरी यहाँ पे प्रॉफिट लॉस, और यहाँ पे मार्कअप इफेक्ट हो रहा है। मार्कअप का मतलब जब आप चीज़ों को उठा के ज़्यादा वैल्यू पे टैग कर देते हैं, मार्कअप। तो यहाँ पे सब कुछ लगा सकते हैं। ठीक है, तो लॉस इफेक्ट का मतलब है आपको नुकसान हो गया 11 पे 1 का नुकसान। तो आपको आउटपुट मिला 10 का, लेकिन आपकी जेब से तो 11 गए भाई। 1/10 का मतलब 11, और 1/11 का मतलब 11 रुपये आपने कुछ भी चीज़ में लगाए, लेकिन आपको 1 का नुकसान हो गया, तो 10 तो वापस आ गए। डिस्काउंट की बात नहीं हो रही है, कोई बात नहीं। ठीक है, चीटिंग की बात हो रही है। तो खरीदने पे चीटिंग करने गया तो 10 पे 1 का फ़ायदा करके ले आया, मतलब आउटपुट है 11 का, लेकिन इनपुट तो 10 का था भाई। पैसे क्वांटिटी 10 के खरीदने के पैसे दे के आया, लेकिन 11 ले आया, चुरा के लाया, कैसे भी लाया, वो अलग केस है। एंड सेल पे चीटिंग करता है 5/4, मतलब पैसे तो ग्राहक से 5 के लेगा, लेकिन अपनी जेब से सामान 4 का देगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जब आप चीटिंग करते हो सेल करने पे एंड यू आर गिविंग लेस क्वांटिटी टू द कस्टमर, तो आपके पास जो बेस होता है वो होता है जो आपने कस्टमर को दिया, और आपके पास पैसे या आउटपुट वो होता है जिसके आपने पैसे लिए। तो आई कैन से उसने 5 यूनिट के पैसे लिए, लेकिन सामान उसको 4 यूनिट का दिया, तभी तो फ़ायदा हुआ उसको। तो इनको मल्टीप्लाई करने पर आपको पता चलेगा दैट इज़ ए ओवरऑल 5/4 आ गया। तो नीचे वाला इनपुट है और ऊपर वाला आउटपुट है। तो 4 रुपये के सामान को आपने 5 पे बेच दिया, तो फ़ायदा हो गया। देयर इज़ अ प्रॉफिट ऑफ 1 यूनिट। तो प्रॉफिट परसेंटेज कितना हो जाएगा, दैट इज़ 25%। कैसे आएगा 25%, 1 का फ़ायदा 4 पर इंटू 100, ये 25% आ जाएगा। होपफुली यू अंडरस्टूड। आप इसी तरह के कंसेप्ट सीखते रहिए सिलेक्शन क्लासेस के साथ में। नेक्स्ट वीडियो में हम और आगे के क्वेश्चन की बात करेंगे, एंड आई विल ट्राई टू अपलोड मोर वीडियोज़ एज सुन एज पॉसिबल एज आई कैन, सो दैट आपका ये जो सीरीज़ है कंप्लीट हो जाए। और जीके के भी क्लासेस में अपलोड कर रहा हूँ, सो दैट आपका जेड का एग्जाम अच्छा हो। सो सी इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन यू कैन कनेक्ट विद द सिलेक्शन क्लासेस।